ٹیلی ویژن پروگرامز، لائیو بائبل اسٹڈیز، غیر مسیحوں کے مشکل ترین سوالات کے جوابات، کئی ہاتھ ایشوز پر مبنی مختلف زبانوں میں ایمان افروز یوٹیوب چینل، نوجوانوں کے مسائل، آن لائن کورسز، میری کئی کتب اور کئی کتب کے تراجم، بائبل مقدس کی کئی کتب کی تفاسیر اور اس بیش قیمت خزانہ تک رسائی کے لیے رابطہ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ معزز ناظرین اور سامعین، آپ جو ہمارے ساتھ آج شام فیس بک کے متعدد پیجز پر ہیں اور پروفائلز پر بھی ہیں، اور آپ جو ہمارے ساتھ یوٹیوب چینل پر اور ایون واٹس ایپ گروپس میں خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں، اور آپ جو ہمارے ساتھ مل کر اس وقت ٹک ٹاک پر بھی موجود ہیں، میری دلی دعا ہے کہ خداوند آج اپنے اس زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے مجھے بھی اور آپ کو بھی انگنت برکات بخشے، اور یہ کلام بہتوں کی روحانی ترقی اور ایمان کی مضبوطی کا سبب ٹھہرے۔ آج کے دن ہم رومیوں کے خط کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم آج 8ویں باب کے اختتام پر ہیں۔ بہت کچھ اس باب سے ہم نے سیکھا ہے، اور بہت کچھ ہم مزید آئندہ بھی خداوند کی مرضی ہوئی تو ہم سیکھیں گے۔ اور آج جو کلام ہے وہ کلام آپ کے لیے اور اس ہر شخص کے لیے ہے جو آج اپنے آپ میں مایوس ہے، نحیف ہے، پئی مردگی سی محسوس کرتا ہے، امیدیں جاتی رہیں اور دروازے کھل نہیں رہے۔ مایوسیوں نے ہمارے دروازے کو دیکھ لیا۔ آج کا کلام یقین جانیے کہ آپ کے ایمان کی مضبوطی کا سبب ٹھہرے گا، اور سیم ویسے ہی یہ کلام میرے لیے بھی ہے، اور میرے لیے بھی یہ بڑا بابرکت ٹھہرا، کیونکہ میں سٹڈی کے دوران بہت وقت لگاتا ہوں، اور ابھی میں دوہری خوراک کھاؤں گا، روحانی طور پر بات کر رہا ہوں، کیونکہ خدا ابھی دوہری مرتبہ مجھ سے اپنے کلام کے ذریعہ بات کرنے کو ہے۔ لہذا آئیے رومیوں کے نام ملہم پولوس رسول کے خط اور اس کے 8 باب اور اس کی 36 آیت سے 39 آیت تک ہم دیکھیں گے۔ اس سے پہلے گزری بائبل سٹڈی میں ہم نے 33، 34 اور 35 آیات پر غور کیا تھا۔ وہاں پر مقدس پولوس ان سے ہم کلام ہیں جو مسیح میں ایماندار ہیں، اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ کون، یعنی کون شخص ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ کون؟ کس کی ہمت ہے؟ اور آج اسی بات کو وہ کنٹینیو رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اور یہاں کتاب مقدس کی ان آیات میں جو میں آپ کی خدمت میں تلاوت کروں گا، کان کھول کر سنیے، توجہ کسی اور طرف نہیں جانے دینا۔ لکھا ہے، چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی
भेड़ों के बराबर गिने गए। मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। आमीन। क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की मोहब्बत हमारे खुदावंद मसीह यस्सु में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीजें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। आमीन। मुकद्दस पौलुस रोमी कलीसिया के ईमानदारों से मुखातिब हैं, जो मुख्तलिफ पहलुओं के एतबार से सताए भी जा रहे थे और वो इंतहाई दुख के आलम में भी थे, लेकिन ईमान की जंग लड़ते चले जा रहे थे। और पौलुस रसूल उनको हौसला देते हैं कि जब आप प्रेजेंट सफरिंग, मौजूदा दुखों का जो आपकी जिंदगी में है, अगर उनका मुकाबला उस आने वाले मिलने वाले जलाल से करें, तो ये जो प्रेजेंट मौजूदा दुख हैं, ये तो मामूली सी बात है, कोई शय ही नहीं है। और अगर आपका दिल खुदा के दिल के साथ मिलकर धड़कता है, अगर आप खुदावंद को प्यार करते हैं, आपका यकीन और भरोसा खुदावंद खुदा पर है, तो कोई शख्स और कोई चीज आपको खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर पाएगी। ना काल, ना नंगापन, ना खतरा, ना तलवार, ना तंगी, ना जुल्म। और फिर आप अहदे अतीक में से एक आयत को कोड करते हैं और कहते हैं, चुनाचे लिखा है कि हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़बा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए। और यह हवाला मुकद्दस पौलुस जबूर 44 और उसकी 22 आयत यानी 22 का रेफरेंस देते हैं यहां पर। लेकिन याद रखिए, मुकद्दस पौलुस तौरात, जबूर और सहाइफुल अंबिया से बखूबी वाकिफ थे। अगर वाकिफ ना होते तो वो जबूर की किताब का यहां पर हवाला भी ना दे पाते। चुनाचे आपने यहां जबूर 44 की 22 आयत, जो यहां रोमियो 8 बाब और उसकी 36 आयत में मिलती है, आपने कोड की है। और याद कीजिए, इस आयत का निचोड़ क्या है कि हम दिन भर तेरी खातिर जान से मारे जाते हैं, हम ज़बा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए हैं। इस बात को याद रखिए कि जरूरी नहीं कि नाफरमानी, गुनाह, हठधर्मी के सबब से ही हम मसाइब और जुल्म और दुखों से दो चार हों। जरूरी नहीं है। ईमानदारों, इस बात को अच्छी तरह पल्ले बांध ले कि हम में से कोई भी परफेक्ट और कामिल तो नहीं है। एक ही है जो परफेक्ट और कामिल है, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन इस बात को जरूर याद रखिए कि जरूरी नहीं कि किसी नाफरमानी या बागियानापन के सबब से ही दुख आए। ईमानदार की जिंदगी में भी दुख और तकालीफ आते रहते हैं, और यह ग्रीन सिग्नल है कि खुदा मुझे प्यार करता है। यह खुदा के प्यार का इजहार है कि एक ईमानदार की जिंदगी में भी दुख और तकालीफ आते हैं। और किसी वक्त मैंने कहा कि मसीही जिंदगी में, ईमानदार की जिंदगी में जो दुख होते हैं ना, ये ईमानदार का जेवर है, गहना। तो यह नहीं कहा जा सकता कि चूंकि इसने ये किया, इसने वो किया, इसने गुनाह किया, इसने ये किया और वो किया, इसलिए इस पर मुसीबत आई। वेल, पॉसिबल है, लेकिन दूसरी तरफ इन दुखों से और इन तकालीफ से ईमानदार भी बरी नहीं है। मेरे ख्याल में 40 मिनट पेशतर मैंने एक कोटेशन भेजी और एक भाई मुझे जवाबन ये कहते हैं कि आपने जो कोटेशन भेजी है ये तो हजारों लोगों को मिली है, डेली ये रूटीन है, लेकिन उन्होंने कहा कि पता नहीं, हमारे आंसू तो बह बह और बहकर अब तो लगता है कि मौत आने वाली है। तो फिर क्या किया जाए? हालांकि वो भाई ईमानदार हैं, और मैंने उनको यह कहा, भाई जी, बाइबल मुकद्दस में भी जितने भी ईमानदार लोग थे, इवन चर्च हिस्ट्री में भी जितने भी सेंट्स, जितने भी मुकद्दसीन थे और हैं, उनकी जिंदगी में दुख और तकालीफ पाए जाते थे। और हां, जैसे आपने कहा, ऐसे भी गुजरे जिन्होंने मौत तक मांगी, और यहां तक कि उन्होंने अपने जन्मदिन पर लानत भी की। उन दुखों के सबब से, उन रोगों के सबब से, उन तकालीफ के सबब से, जो एक ईमानदार होने की हैसियत से, खुदा पर भरोसा होने के एतबार से उनकी जिंदगी में वो दुख, वो तकालीफ आई। इस बात को अच्छे तरीके से समझने और पल्ले बांध लेने की जरूरत है कि ईमानदार दुखों से बरी नहीं है। यीशु मसीह, जिसके हम फॉलोअर्स हैं, उसने क्या कहा था? मुझे बार बार याद दिलाना पड़ता है कि सलीब उठा और मेरे पीछे चल। और इसका मतलब गले में सलीब पहन लेना, कोट के कॉलर पर या गाड़ी में लटका लेना मुराद नहीं है। सलीब दुख को पेश करती है। तो यीशु के कहने का मतलब था, अगर तुम मेरे नक्शे कदम पर चलना चाहते हो ना, तो तुम्हें दुखों से दो चार होना होगा। That's what our Lord Jesus Christ is saying. और बारहा बार मसीहा ने हमें सताए जाने से मुताल्लिक बताया है कि ऐसा होगा। लान तान भी किया जाएगा, कत्ल भी किए जाओगे, कैद खानों में भी डाला जाएगा, और लोग ऐसा करना तुम्हारे साथ कारे सवाब समझेंगे। क्या नहीं हो रहा है आजकल यही? ऑफ कोर्स। और अब मुकद्दस पौलुस इस आयत का हवाला देते हुए, जो ज़बूर 44 और उसकी 22 आयत है, आगे ये बताते हैं, मगर उन सब हालतों में, किन हालतों में? ऊपर लिखा है, मुसीबत में, तंगी में, जुल्म में, काल में, नंगापन में,
तलवार में, खतरात में, इन तमाम हालात में और इन तमाम हालतों में गौर कर रहे हैं आप में से कौन है जो आज इन हालात से गुजर रहा है जिनकी लिस्ट मैंने आपके सामने रखी? कौन सी? तंगी, मुसीबत, जुल्म, काल, नंगापन, खतरात और तलवार, और इस जैसी बहुत सारी और बातें जो आपकी जिंदगी में भी हैं। और मैं ईमानदारों से बात कर रहा हूं। ये बातें ईमानदारों के लिए लिखी है, बेईमानों के लिए तो लिखी ही नहीं गई ये वाली बातें। बाइबल में बहुत कुछ बेईमानों के लिए है कि तौबा कर और रजू ला तो तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएंगे। बाइबल में बहुत कुछ है कि खुदा ने तुझसे ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना बेटा बख्श दिया ताकि तू उस पर ईमान लाए तो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। बहुत कुछ है, लेकिन मैं इस हवाले में बात कर रहा हूं उनसे मुताल्लिक जो मसीही मोमिनीन है, लेकिन उनकी जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स, निशेबो फराज हैं। ये उनकी बात हो रही है और मेरे लिए और आप सब के लिए भी। पौलुस क्या लिखते हैं? मगर इन सब हालतों में उसके वसीला से, किसके वसीला से? जिसने हमसे मोहब्बत की। वाओ, कौन है वो? यूहन्ना 3:16। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की। मोहब्बत की खूबी यह नहीं है कि हम बहुत अच्छे थे, बल्कि यह उसकी तरफ से मोहब्बत के जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारे गुनाहों के लिए मर गए। और अब यहां हम देखिए, इन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से बढ़कर गलबा हासिल होता है। फतह से बढ़कर। गुजरे दिनों में पॉलिटिकली पाकिस्तान में फतह के कितने ज्यादा नारे थे, हमने ये किया और वो किया। खुशी का इजहार, भले वो जज्बाती तौर पर था या जैसे भी था ना। लेकिन यहां लिखा है फतह से भी बढ़कर गलबा, और गलबा से मुराद गालिबाना, ओवरकमिंग। फतह से भी बढ़कर गलबा। वो जिसने हमसे मोहब्बत की, इन तमाम हालात में वो हमें फतह से बढ़कर गलबा बख्शता है। ये उसकी मोहब्बत है और ये उसका प्यार है। और यही सबब है कि जब खुदावंद के साथ कनेक्ट रहें, खुदावंद के साथ जुड़े रहें, तो फिर यही बात हम आगे देखते हैं कि फिर दुनिया की कोई भी चीज हमें खुदावंद मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। ये बिल्कुल क्लियर कट बातें हैं। और फिर लिखा है, क्योंकि मुझको यकीन है, मुकद्दस पौलुस फरमाते हैं, क्योंकि मुझको यकीन है, यानी मुझ पौलुस को, कि खुदा की जो मोहब्बत कैसे जाहिर हुई, जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह में है। यीशु मसीह के वसीला से उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मैं अक्सर औकात कहता हूं, खुदा ने गुनाहगार इंसान के लिए निजात का मंसूबा बनाया। बेटे ने, यानी यीशु मसीह ने, उस निजात के मंसूबे पर काम किया। हालेलुया। और रूह अल कुद्स ने
उस निजात के मंसूबे पर मोहर लगाई, तस्दीक की, और वही खुदा का रूप बतौर बयाना मुझे और आपको मिल गया है, जो हमारी जिंदगियों में और हमारे जीवन में सकूनत पजीर है मेरे अजीज। और यहां पर यही लिखा है, क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदाबंद यीशु मसीह में है, उससे हमको ना मौत जुदा करेगी, वगैरह वगैरह। लेकिन एक और बात, ये तो पौलुस रसूल कह रहे हैं ना, पाक रूह की तहरीक से। ईमानदारों, क्यों ना मैं और आप भी आज ये कहें, जहां पौलुस ये कहते हैं, और क्योंकि मुझको यकीन है, वहां पर हम बने फिजिकली अपनी आंखें बंद करके रूह में खुदावंद से कहें, ओ खुदावंद, मुझको यकीन है। और फिर इस आयत का बकिया हिस्सा, मुझको यकीन है क्या, कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद यीशु मसीह में है, किससे? मुझसे। उस मोहब्बत से हमें, ये हम कौन है? जितने भी मसीही मोमिनीन हैं। उस वक्त पौलुस और रोमी कलीसिया की बात हो रही थी, लेकिन हर जमाने के मसीही मोमिनीन के लिए यह बात है। इवन आज आपके लिए भी और मेरे लिए भी, जो हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन खुदा के कलाम को सीख रहे हैं। और यकीन जानिए, जब मैं आपके सामने खुदा के कलाम को पेश करता हूं ना, तो यह खाना पुरी नहीं है। ना 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 ना, मैंने आपको जवाब नहीं देना, मैंने खुदावंद को जवाब देना है। आधा घंटा, 35 मिनट, हद हो तो 40 मिनट कलाम सुनाने के लिए मुझे कई घंटे दुआ और फिर कलाम की स्टडी में गुजर जाते हैं। ये ऐसे ही नहीं हुआ जाता। खुदा के रूह की हदायत से उसके चेहरे के दीदार का तालिब हुआ जाता है, ताकि वो हमसे हम कलाम हो और हमसे बोले। तो क्या लिखा है कि उसकी वो मोहब्बत जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमसे है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी। वाओ, सुन रहे हैं? ये बातें मामूली नहीं है, बहुत बड़ी बातें। मैं आता हूं इस बात पर। ना मौत ना जिंदगी, ना फरिश्ते ना हुकूमतें, ना हाल की ना इस्तकबाल की चीजें, ना कुदरत ना बुलंदी, ना पस्ती ना कोई और मखलूक, कोई भी चीज हमें उस मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। मैं आपको बताता चलूं, शायद आपको पॉलीकार्प का नाम याद हो। वो बुजुर्ग और इफसस के बिशप भी थे। 85 साल उम्र हो गई, मामूली उम्र नहीं है। और अब उनको गिरफ्तार किया गया और लकड़ी की बल्ली खड़ी की गई। उसके साथ आपको खड़ा करके उनके हाथ पीछे करके बांधे गए। और उस वक्त की रोमी हुकूमत ने कहा, उस यीशु का इनकार कर, नहीं तो मौत सर पर है। ये जो लकड़ियां तुम अपने इर्द गिर्द ढेर देखते हो, हम इनको आग लगा देंगे।
खत्म हो जाओगे। इनकार करो यीशु का। बिल आखिर मुकद्दस पोलीकार्प का जवाब क्या था कि जो खुदा अब 86 वर्ष का हो गया हूं, मेरे साथ 86 वर्ष तक वफादार रहा, अब मैं दम भर की इस मुसीबत से बचने के लिए उसका इनकार कर दूं? ओह, हाउ इट्स पॉसिबल। यह कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं उसका इनकार नहीं करूंगा। तुम मुझे जला दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम उस हमेशा की आग से कभी बच नहीं पाओगे। मेरे लिए यह दम भर की आग है। इसके बाद मैं हयाते अबदी में दाखिल हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी का यकीन है। मुकद्दस पतरस ने कहा, चढ़ा दो सूली मुझे, नो इशू, लेकिन मुझे वैसे सूली नहीं देना जैसे मेरे मालिक मसीहा को दी। मुझे उल्टी सलीब चढ़ाया जाए। जितने भी बाइबल मुकद्दस में मुकद्दसीन हैं, उनकी जिंदगियां हमारे लिए मशाल राह है। स्तिफनस संसार हो रहा था, दिल से आवाज आ रही थी, दुआ खुदावन इनको मुआफ कर, और इनका गुनाह इनके जिम्मा ना लगा, और ये कहकर वो सो गया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि फिजिकल मौत एक ईमानदार के लिए हमेशा की जिंदगी में दाखला है। तो मुख्तसर तौर पर पौलुस कहते हैं, मौत हो या जिंदगी, मसीह की मोहब्बत से ये जुदा नहीं कर सकते। ना फरिश्ते, अदन में जुदाई डाली थी ना, हुकूमतें भी अजीब अजीब कवानीन बना के मसीह को हमारी जिंदगियों से निकालने की कोशिश करते हैं। आपको जानते हैं, आपको पता है। लेकिन ना फरिश्ते ना हुकूमतें हमारा कुछ बिगाड़ पाएंगी। ना हाल के हालात, ना मुस्तकबल में इस जमीन पर हुए तो ना, इनमें से कुछ भी नहीं। ना ही कोई कुदरत, ताकत, और ना ही बुलंदी और ना ही पस्ती, ना ही कोई और मखलूक हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सकती है। नो। और मुकद्दस पौलुस इस बात का इकरार करते हैं कि मैं मसीह की मोहब्बत के दाग अपने जिस्म पर लिए फिरता हूं। ईमानदारों, आज मैं और आप अपनी जिंदगी पर गौर करें और इस बात पर जरा ध्यान दें कि हम किस तरह के दाग अपने बदन पर लिए फिरते हैं। खुदावंद के हुजूर आज मेरा और आपका क्या जवाब है? जब कोई मुश्किल, जब कोई परेशानी आती है, उस वक्त हमारा रवैया क्या होता है? उस वक्त हम क्या कहते हैं खुदावंद को? क्या गिले और शिकवे, या हम कहते हैं खुदावंद आपका शुक्र हो इन हथौड़ियों और छैनियों के लिए जो दुखों की हैं, जिनके जरिया से इस पत्थर को आप तराश कर हीरा बना रहे हैं, ताकि मैं कीमती बन जाऊं। उसने इस पत्थर को तराश कर एक अनमोल हीरा बना दिया। मैं तो आपका दुश्मन था और आप मेरे, लेकिन खुदावंद की तारीफ हो कि सलीब के पैगाम ने
آپ کو اور مجھے ایک ہی گھرانے کے لوگ ٹھہرایا ہے، اور اب میرا اور آپ کا وہ رشتہ ہے جو خونی رشتوں سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ خونی رشتے ٹوٹ گئے، لیکن جو مسیح میں رشتے ہیں وہ انٹوٹ ہوتے ہیں۔ عزیز بھائیوں بہنوں، اپنی زندگیوں پر غور کیجئے، اور میں سمجھتا ہوں شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے، ان دکھوں کے لیے بھی اور ان تکالیف کے لیے بھی جو ہماری زندگی میں آتی ہے۔ یہ ہمیں ہلاک کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری بہتری کے لیے اور ہماری بھلائی کے لیے ہے، اور ہمیں بنانے کے لیے ہے۔ خداوند قدوس آج کے اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بھاری برکت عنایت فرمائے۔ ہم دعا کریں گے، اور میں نہیں جانتا کہ آپ کی کیا ضرورت ہے جس کے لیے دعا کی جائے ماسوا ایک دو کے، لیکن کوئی ہے جو آپ میں سے ہر ایک کی ضرورت سے بخوبی واقف ہے۔ میں نہیں واقف، لیکن وہ ضرور واقف ہے۔ آپ کی خواہ کیسی ہی ضرورت کیوں نہیں ہو، اس خداوند کے سامنے رکھیے۔ میں جنرلی دعا کروں گا، اور یسوع کے نام سے آپ کی زندگی میں ایک معجزہ ہوگا، ایک انقلاب آئے گا۔ خداوند ہمیں پیار کرتا ہے، وہ ہمیں کبھی چھوڑتا نہیں، ہم سے کبھی دستبردار نہیں ہوتا۔ اس کے وعدوں پر یقین کیجئے، وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ بند دروازوں کو کھولتا ہے۔ بس یہ دعا کی ضرورت ہے، خداوند اگر آپ کی طرف سے دیر ہے تو مجھے ایمان اور یقین کے ساتھ، صبر کے ساتھ آسمان سے جواب کے ملنے کے لیے انتظار کرنے کا فضل بخشیے، اور خداوند ایسا کرنے کے لیے تیار ہے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ اے خداوند قدوس، میں آپ کا خادم ہوتے ہوئے آج آپ کی حضوری میں آتا ہوں اور شکر گزاری کرتا ہوں اپنے اس روحانی گھرانے کے لیے جو اس وقت آپ کے کلام کو سن رہا ہے، اس دھرتی کے طول و عرض میں ہے۔ او خداوند، ایک ایک کے لیے آپ کی برکت اور آپ کی سلامتی چاہتا ہوں۔ اپنے لوگوں کے ایمان کو اور بڑھائیے، مضبوط کیجئے۔ حالات کا گراف تو اوپر نیچے ہوتا ہی رہتا ہے، اور یہ ہوگا آپ کے کلام کے مطابق، لیکن ہمیں ایمان پر قائم اور ثابت قدم رہنے کا فضل عنایت فرمائیے، کیونکہ یہ دنیا کے دکھ پل بھر کے ہیں۔ اور خداوند آج میں اپنے ان عزیزوں کو آپ کے سامنے لاتا ہوں جنہوں نے اپنی دعائیہ درخواست آج آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آپ کے حضور منت کرتا ہوں خداوند، آپ ان کے دل پر اور ان کے ذہن پر لکھی ہوئی ان دعائیہ درخواستوں کو لے لیجئے، اور اپنی پاک مرضی کے مطابق جہاں کہیں بھی آپ کے لوگ ہیں، ان کی زندگی میں آپ معجزہ کیجئے، انقلاب پیدا کیجئے، تبدیلی لائیے، تاکہ آپ کا جلال آپ کے لوگوں کی زندگی سے بڑی کثرت کے ساتھ ظاہر ہو سکے۔ او خداوند، آپ کا خادم ہوتے ہوئے دعا کرتا ہوں، اگر کسی کا بھی بلڈ پریشر ہائی یا لو ہے، شوگر لیول ہائی اور لو ہے، یسوع کے نام سے نارمل ہو جائے۔
اگر کسی کے گردے صحیح طور پر فنکشن نہیں کرتے یا ڈائلسس پر ہے، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں، او خداون ممکن کیجئے کہ ان کو نئے گردے مل جائیں، کیونکہ بدن کے تمام سپیئر پارٹس آپ ہی کے پاس ہیں۔ جن کو دل کی امراض ہیں، مسیح خداون کے نام سے ان کے دل بالکل ٹھیک اور تندرست ہو جائیں اور وہ کامل شفا پائے۔ خداون جن کو کینسر جیسی موذی مرض نے گھیر رکھا ہے، اپنے ہاتھ کو بڑھا کر اس کینسر کو جڑ سے اکھاڑ دیجئے، تاکہ خداون آپ کے لوگ مکمل طور پر شفا یاب ہو جائے۔ ہر طرح کا بدن میں انفیکشن، ارتھرائٹس پینز یعنی جوڑوں کی درد، تھائرائیڈ پرابلم، سائیکالوجیکل پرابلمز، ہر طرح کا پاگل پن اور ہر طرح کا مفلوج پن یسوع مسیح کے قدرت والے نام میں مکمل طور پر ہیل ہو جائے۔ چھوڑ دو ان بدنوں کو ابھی اور اسی وقت، اور خداوند ممکن کیجئے کہ آپ کے لوگوں کے وسیلے سے آپ کے نام کو جلال ملے۔ اے خداوند، اگر کسی اور طرح کی بھی کوئی میڈیکلی ایشو ہے، آپ جانتے ہیں، ہیل کیجئے اپنے لوگوں کو یسوع کے نام سے۔ بے اولاد شادی شدہ کپلز کے لیے اولاد کی برکت کی درخواست کرتا ہوں۔ آج کا دن آپ کے لوگوں کی زندگی میں معجزے کا دن ہو۔ خداوند، ہم آپ کو قطعی طور پر آزما نہیں رہے، کیونکہ کئی بار آزما کر دیکھا کہ آپ معجزات کے خداوند ہیں۔ کچھ بھی آپ کے لیے مشکل اور ناممکن نہیں ہے۔ بے روزگاروں کے لیے روزگار کے دروازے کھول دیجئے۔ جن کی ازدواجی زندگی میں پرابلمز ہے، میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، یسوع کے نام سے یہ خاندان اب بحال ہو جائے اور دونوں میاں بیوی کو پرسکا اور اکولا کی طرح استعمال اور خرچ کیجئے۔ خداوند، جن گھرانوں میں بچے ہیں لیکن وہ باغی ہے، یسوع کے نام سے مصرف بیٹے کی طرح ان کو واپس لائیے کہ اپنے والدین کے لیے وہ خوشی اور برکت کا سبب ہوں۔ ہماری زندگیوں سے ہر طرح کا باغیانہ پن جاتا رہے۔ دکھوں میں، تکالیف میں ہم آپ کے نام کو سراہتے رہیں، اور خداوند ہمارے سست ہاتھوں کو اور ڈھیلے گھٹنوں کو مضبوط کیجئے، تاکہ ہم آپ کے قدموں میں ٹھہرے رہیں اور روح میں آپ کے چہرے کے دیدار کے طالب رہیں۔ اپنے طالبوں کی اس وقت کی دعا کو سنیے اور قبول فرمائیے۔ مسیح خداوند کے نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین اینڈ آمین۔ آئیے ہم دعائے ربانی میں اگر شریک ہو سکتے ہیں تو ہوں۔ اے ہمارے باپ، آپ جو آسمان پر ہے، آپ کا نام پاک مانا جائے، آپ کی بادشاہی آئے، آپ کی مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دیجیے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا، آپ بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کریں۔ ہمیں آزمائش میں نہ لائیں بلکہ برائی سے بچائیں، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک آپ ہی کے ہیں۔ آمین اینڈ آمین۔ اور اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی رفاقت و شراکت ہم سبوں کے ساتھ اور دنیا کے تمام مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتا رہے۔ آمین اینڈ آمین۔
www.newlifeinstitute.org